Hello students, welcome back to the channel Study with Jaggi. Beta, we were doing our chapter The Day the River Spoke. Beta, this story I told you, it was about Janvi, okay? And the overall story was that what message we get from the story was it encourages whom? The students to explore the interconnectedness of nature and human life. The story, The Day and the River Spoke, emphasizes, किस पे emphasize कर रहा है? The importance of respecting and listening to nature. The river encourages whom? The main character of the story was Janvi. It was encouraging Janvi to overcome her fears. जो उसका डर था उसको overcome करने के लिए बोल रही थी. And societal barriers by what? By boldly pursuing her desire. What was her desire? उसका desire था आगे पढ़ने का. Because she did not get chance to study. So what was her pursuing desire? To study. Education, assuring that her courage can make a difference. तो अगर आपको याद हो जो रिवर थी वो उसको मोटिवेट करती है कि यू शुड गो टू स्कूल नेक्स्ट डे एंड देन यू कैन डू योर स्टडीज. We completed the chapter in the last video. If you want to see, you can see the explanation in easy way to the first video of this chapter. Now we will complete our book exercises and discuss the question answers. So beta, let us discuss. We start from here. Complete the table given below with Janvi's questions in column 1 and the river's answer in column 2. Means this column 1 is who is asking the questions? Janvi. From whom? The river. And this column 2, who is answering? The river. Check your answers with the teacher. So let us start. So what was the first question by Janvi? Why the moon always come from behind the hills? So what was the answer given by the river? If you remember, it was it goes down towards the sea. I have seen it. It always takes the same path over the mountains and down to the sea like me. बेटा ये जो आंसर किया ये रिवर ने आंसर किया है एंड वी आर राइटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिवर. ये आपके चैप्टर में लाइंस दी हुई हैं. ओके, सो बेटा नाउ इन कॉलम 2 सी द सेकेंड पार्ट. लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज. ये आंसर किसने किया है? रिवर ने. सो व्हाट वुड बी द क्वेश्चन ऑफ द गर्ल जानवी? शी सेज, कैन आई डू समथिंग? कैन आई डू something? She is asking the question, so we will put question mark. Now beta see, third again the answer is given by the river. So what was the answer? Big boat, so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. So what was the question of Janvi here? What are ships? If you remember, जानवी रिवर से पूछती है कि ships क्या होती हैं.
What are ships? Then again question mark. Now बेटा here comes will they come here? ये जानवी क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है. सो रिवर से अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि शिप्स क्या होती हैं, तो रिवर ने क्या बोला कि बिग बोट सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट. सो विल दे कम हेयर? तो जो जानवी है वो बोल रही है कि क्या वो यहाँ पे आएंगे, शिप्स आ सकती हैं रिवर में. सो व्हाट इज द रिप्लाई गिवन बाय द रिवर? नो, नो दे वॉन्ट, वो नहीं आ सकती. दे आर टू बिग, वो बहुत बड़ी होती हैं शिप्स. ओके, सो बेटा here it completes. Beta just see the answers. Okay, I'm giving you 1 minute. You can see. Okay, write with the pencil if possible in your book. Okay, take it a glance. Now beta we are going to do let us think and reflect. Beta one thing remember now that if you are thorough with the chapter reading, you are able to understand the question and give the answer also. So beta see, now questions are given. Read the extracts means जो chapter में से paragraphs हैं उनमें से आप लोग read करना है एंड उनको आंसर्स के क्वेश्चंस, मतलब यू हैव टू सॉल्व द आंसर एंड गिव द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दिस फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1. सो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम योर चैप्टर द डे द रिवर स्पोक. सो लेट्स स्टार्ट. यू शुडंट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन. अब बेटा अगर आपको अच्छे से स्टोरी सुनी है आपने तो ये लाइन कौन बोल रहा होगा? यू शुडंट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन एंड आई थिंक रिवर. एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए. व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे. कौन आता था उसको देखने के लिए? जानवी. और किसको देखने? रिवर को मिलने. वेल ऑलमोस्ट एवरी डे. शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस like the river. It couldn't be the river. Well, tell me all about it. अब बेटा अगर आपको याद हो तो उसको विश्वास नहीं होता ना कि रिवर की आवाज हो सकती है. It was such a voice like the river. It couldn't be river. उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि रिवर की आवाज है. Well, tell me all about it, said the river. For it was the river. But वो आवाज रिवर की ही थी. I have got to hurry to reach the sun. See, you know. Okay, so we have read this extract. Now we are going to solve the question answers. Complete the sentence with the correct option from those given in the brackets. So we are given 2 words here. We have to choose. The tone of the river in the given extract is. तो बेटा जो tone है river की वो क्या है? Assuring है या sympathizing है? बताइए जल्दी से सोचिए बेटा. आपने इसके पर्सपेक्टिव से सोचना है जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है. ओके, जल्दी. बेटा यहां पे जो रिवर है जो उसकी टोन है वो है एश्योरिंग. व्हाट इज द टोन है? Assuring. So put tick here and write down the answer here. Assuring. ठीक है? So the tone of the river in the given extract is assuring. Select a phrase from the extract which shows that Janvi was a frequent visitor to the spot. तो बेटा वो कह रहे हैं कि जो लाइन है या जो फ्रेज है जिससे हमें ये पता लगता है कि वो डेली उसको मिलने जाती थी रिवर के पास, तो वो कौन सी लाइन होगी?
See this line. When you have been coming here to see me every day, where almost every day. So beta this is the answer here. Okay. So you can write here second point. Okay. Choose the correct option to complete the sentence. So see, अगेन आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको उनमें से एक चूज करना है. द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, इट कुडंट बी द रिवर. ठीक है, इट कुडंट बी द रिवर. बेटा सी है दिस लाइन, इट कुडंट बी द रिवर, एक्सक्लेमेशन साइन. एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो? ऑब्वियसली बेटा उसको इट कुडंट बी द रिवर, इट मीन्स कि उसको विश्वास नहीं था. विश्वास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलीव. तो अगर विश्वास नहीं था तो आगे क्या लग जाएगा? डिस. डिस बिलीव. सो आंसर इज दिस. राइट डाउन है डिस बिलीव. अब बेटा अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चूज 3 क्वालिटीज. 3 क्वालिटीज चूज करनी है ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो. सो वर्ड्स कौन से? अफेक्शनेट, फॉरगिविंग, थॉटफुल, इम्पेशेंट, काइंड हार्टेड. तो जो रिवर है, रिवर की 3 क्वालिटीज कौन कौन सी हो सकती है? अफेक्शनेट, वो प्यार, लव, केयर एंड शो करती है. ठीक है. थॉटफुल, बिकॉज उसको अच्छे थॉट्स, दैट इट मोटिवेट्स जानवी टू स्टडी. ठीक है, उसको मोटिवेट करती है ना कि स्कूल जाना चाहिए. सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू गो एंड विजिट द स्कूल. ठीक है. नेक्स्ट इज काइंड हार्टेड, वो उसका बेटा जो दुख होता है, ठीक है, दैट शी इज नॉट एबल टू स्टडी, वो समझ आती है. ठीक है, एंड उसको अच्छे से मोटिवेट करती है. ओके. जल्दी से बेटा आंसर्स देख लीजिए. ठीक है, और अपनी बुक में सोल्व कर लो. यस. So beta, now let us do the second part. This is also an extract from your book, the lesson, the river, the day the river spoke. Can I do something? Asked Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on. And maybe the teacher will let you stay. I couldn't, gasped Janvi. बेटा यहाँ पे गैस्प का मतलब बहुत जोर से सांस लेना. ठीक है. I couldn't. They would scare me. They would chase me out. मुझे बाहर निकाल देंगे. ठीक है. So this was the extract. Now we are going to solve the questions related to this following lines. Complete the sentence with an appropriate reason. हमें sentence दिया हुआ है और हमें reason देना उसका. Complete the sentence with an appropriate reason. According to the river, there was no difference between girls and boys because, बताइए बेटा, because they can do the same things like swim as fast. बेटा ये लाइन देखिए यहाँ पे, They swim as fast as little boys. ठीक है, जो लड़कियां हैं वो भी बॉयज की तरह वैसे ही स्विम कर सकती हैं. ठीक है, फास्ट. सो सी द सेकेंड क्वेश्चन. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सही है या गलत. द रिवर एनकरेजेस, एनकरेजेस वर्ड तो हमने यूज किया था.
मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो आपको बताया था कि जो रिवर है वो उसको एनकरेज करती है जानवी को। टू हैव फेथ इन हरसेल्फ, उसको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। सो ये ट्रू होगा या फॉल्स? ऑटोमेटिकली अगर हमने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो ये ट्रू होगा। ओके तो बेटा अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग इट मीन्स दैट शी शुड हैव मूव, मतलब वो चुपचाप धीरे से अंदर चली जाएगी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर क्वाइटली। बेटा बहुत सारे बच्चे ना क्वाइटली की स्पेलिंग में बहुत मैंने जितनी बार भी देखा है मिस्टेक करते हैं। सो मेक श्योर you learn the spelling. This is Q-U-I-E-T-L-Y, quietly. Okay, now see the fourth question. What does the repetition of the phrase I couldn't tell us? तो I couldn't बार बार कौन बोलता है? जानवी। सो इसका मतलब क्या? वो बोल रहे हैं कि रेपिटेशन में वो बोलती है जानवी I couldn't, मेरे से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि she is not sure, okay, and वो डरी हुई है। So this means scared and unsure. She is not sure. Okay, उसको डर भी लग रहा है and वो sure भी नहीं है। ठीक है बेटा, these answer questions, answer the following question on page number 8. We will do in the notebook. Okay, now what we can do here? Yes, okay, ठीक है बेटा। सी फर्स्ट पार्ट, यू हैव लर्न दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। ये तो हम सबको पता है कि जो नाउन्स क्या होता है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, है ना। एंड ओनली प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो बिगिन करते हैं कैपिटल लेटर से। सो व्हाई हैज द ऑथर, जो ऑथर है इस चैप्टर का, ठीक है, उसने कैपिटल लेटर फॉर द रिवर, ठीक है, उसने यूज किया इवन व्हेन इट इज अ कॉमन नाउन। वो कहते हैं कि कॉमन नाउन है रिवर तो कोई भी हो सकती है, बाय नेम तो कुछ भी नहीं है रिवर का नाम, ठीक है, बट उसको रिवर को आर कैपिटल दिया हुआ है। व्हाई? इवन दो इट्स अ कॉमन नाउन, बट जो हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? प्रॉपर नाउन्स की। ठीक है, जैसे ताजमहल, टी कैपिटल, एम कैपिटल। ओके, सो क्लू दिया हुआ है हमें, हैज द रिवर बीन गिवन क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। बेटा मैंने आपकी पहली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था जो रिवर है उसको पर्सोनिफाई किया गया है किसके साथ? ह्यूमन बीइंग क्वालिटीज के साथ। ठीक है, सो ये तो हमें आंसर्स यहीं से हिंट मिल गया है। ठीक है, जो इन रियल लाइफ होती हैं, क्या रिवर्स बात करती हैं? बट इस स्टोरी में कर रही है। ठीक है, द ऑथर यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहा है रिवर को, वो शो कर रहा है जैसे वो एक ह्यूमन बीइंग है और वैसे ही वो बातें कर रहा है, जिसमें वो क्या बताता है एक लड़की को, और यहाँ पे जो लड़की है वो कौन है? जानवी। उसको गाइड करता है, एम्फेसाइज करता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या होती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन योर लाइफ। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑथर है वो यूज करता है कैपिटल आर फॉर द रिवर बिकॉज द रिवर एक्ट्स लाइक अ पर्सन। यहाँ पे जो रिवर है वो एक पर्सन की तरह एक्ट कर रही है। इट टॉक्स, वो बात कर रही है, हेल्प कर रही है, और किसको हेल्प कर रही है? जानवी को। सो बेटा ये एक ऐसा करेक्टर दिखाया है यहाँ पे रिवर में, ठीक है, रिवर को जो एक ह्यूमन एबिलिटीज रखता है बात करने का, समझाने का, एंड नॉट जस्ट वाटर। यहाँ पे जो रिवर है वो अकेले एक पानी नहीं है। ठीक है, सो दिस हेल्प्स द रीडर्स फील दैट द रिवर हैज इट्स ओन वॉइस। उसकी खुद की एक आवाज है जो जानवी से बात कर रही है। ठीक है, एंड फीलिंग्स हैं उसमें, विजडम है, मेकिंग इट मोर पावरफुल एंड मीनिंगफुल इन दी स्टोरी। और बेटा देखिए बिगनिंग में ही मैंने आपको बताया था कि वो एनकरेज करती है, सोसाइटियल बैरियर्स को तोड़ती है जहां पे गर्ल्स को नहीं आगे पढ़ाया जाता।
ठीक है, इग्नोर किया जाता है. सो वो मोटिवेट करती है जानवी को टू स्टडी फर्दर. बेटा टुडे वी विल डू टिल हेयर ओनली. ओके, सो आई विल शो यू द एक्सरसाइजेस अगेन विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. टेक अ लुक. See, we have done today this on page number 6. This was the questions by the Janvi, the girl, and these were the answers given by the river. Okay, देखिए बेटा. Then we have discussed this question extracts and we have solved here in the book only itself. देखिए. Then we have done the second part. This we will do in the next video. So beta, do like this channel and share. Okay. And do comment how do you like this video. आपको कैसी लगी ये वीडियो? Do comment. Okay. And subscribe this channel for more videos. Okay. And we will be doing the question answers here in the notebook. Okay. Have a good day, beta.